پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان رہے گا یا نہیں رہے گا؟ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے استعفیٰ دے جانے کے فوری بعد جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو پہنچا دیا۔ آخر ایسی کون سی وجہ تھی؟ سینٹ میں الیکشن ملتوی کرنے کے لیے ایک اور قرارداد جمع کروا دی گئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر ابتدائی سماعت کے بعد الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیے۔ السلام علیکم، میں ابرار احمد مہر ایڈوکیٹ۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان رہے گا یا نہیں رہے گا؟ بہرحال اس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کل کرنے جا رہی ہے۔ آج پورا دن اس کیس کی سماعت ہوتی رہی، لیکن بالآخر کل 10 بجے تک اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ اب یہاں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے پاس سب سے بڑا امپورٹنٹ کوسچن صرف یہی ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن تھے وہ درست تھے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے اس کوسچن کو کلیئر کر دیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس بات کے اوپر کنوینس کر لیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن درست ہوئے تھے، تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان رہ جائے گا۔ لیکن اگر وکلاء اس بات کو ثابت نہ کر سکے تو پھر وہ بلے کے نشان سے محروم ہو جائیں گے اور انٹرا پارٹی الیکشن کل عدم قرار دے دیے جائیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کے اوپر جتنے بھی امیدواران ہیں ان کو آزادانہ حیثیت سے علیحدہ نشان کے اوپر الیکشن لڑنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے استعفیٰ دے جانے کے فوری بعد جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو پہنچا دیا۔ آخر ایسی کون سی وجہ تھی؟ کیا جسٹس اعجاز الاحسن نے مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے ساتھ سولیڈیرٹی کی یا اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی تھی؟ اس کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ آج کے دن کی ڈیولپمنٹ یہ بھی تھی کہ سینٹ میں الیکشن ملتوی کرنے کے لیے ایک اور قرارداد جمع کروا دی گئی۔ اس قرارداد کی کیا قانونی حیثیت ہو سکتی ہے؟ کیا سینٹ میں جب کوئی قرارداد منظور ہو جائے تو کیا اس کا الیکشن کے اوپر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ الیکشن ملتوی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس ٹاپک کی کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن کی جو ایک دو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس کو بھی ڈسکس کر لیں۔ ایک تو یہ کہ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر ابتدائی سماعت کے بعد الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیے، سماعت 16 جنوری تک ملتوی۔ اس میں صورتحال یہ تھی کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سرٹیفکیٹ اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ نہیں کیا تھا، تو اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف توہین عدالت کی ایک پٹیشن فائل کی۔ اس کے اوپر آج ابتدائی سماعت نہیں ہوئی، لیکن مزید کارروائی کے لیے 16 جنوری کی ڈیٹ فکس کر دی گئی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس میں نوٹس جاری کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے الیکشن 2024 کے لیے انتخابی نشان کی مکمل فہرست جاری کر دی ہے، لیکن بلے کا نشان اس میں شامل نہیں کیا۔ اس میں آلریڈی اپنے ایک ویلاگ کے اندر یہ کہہ چکا ہوا ہوں کہ جب تک یہ بات کلیئر نہیں ہو جاتی سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان رہے گا یا نہیں رہے گا، اس وقت تک الیکشن کمیشن آخری حد تک جائے گی اور اپنی ویب سائٹ کے اوپر سرٹیفکیٹ اپلوڈ نہیں کرے گی اور نہ ہی فہرست میں بلے کا نشان شامل کرے گی۔ مختلف ٹاپکس کی طرف ایک تو یہ کہ سینٹ میں آج الیکشن ملتوی کرنے کے لیے ایک اور قرارداد جمع کروا دی گئی ہے۔ اس قرارداد کا الیکشن کے پروسیس کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیا اگر یہ قرارداد منظور ہو جائے تو الیکشن واقعی ملتوی ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس میں آلریڈی بھی کافی ڈیٹیل کے ساتھ اپنی ویلاگ کے اندر یہ ڈسکس کر چکا ہوا ہوں کہ سینٹ کے اندر کسی بھی قسم کی الیکشن ملتوی کرنے کے حوالے سے کوئی بھی قرارداد اگر منظور ہو جاتی ہے تو اس کا الیکشن کے پروسیس کے اوپر بالکل بھی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ الیکشن ہونا ایک آئینی پروسیس ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر بڑی واضح اپنا پیغام دے چکی ہے، ایک ڈکلیریشن دے چکی ہوئی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہونا پتھر کے اوپر لکیر ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کے اوپر بڑا کلیئر ہے کہ الیکشن ایک اسپیسیفک ٹائم کے اندر ہو جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی 8 فروری 2024 کی ڈیٹ دے دی ہوئی ہے۔ سینٹ میں کسی قسم کی ایسی کوئی بھی قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چونکہ اس سے پہلے بھی ایک قرارداد سینٹ کے اندر پیش کی گئی تھی جس کو میجورٹی کے ساتھ منظور کر لیا گیا، آلدو کہ اس کا کورم اس وقت تک مکمل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میجورٹی کے ساتھ اس کو منظور کر لیا گیا، اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا، لیکن اس قرارداد کا بھی الیکشن کے پروسیس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اب بھی جو سینٹ کے اندر قرارداد پیش کی گئی ہے اگر وہ میجورٹی کے ساتھ منظور ہو بھی جاتی ہے تو بھی اس کا الیکشن کے پروسیس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ الیکشن اپنی مقررہ ٹائم کے اوپر 8 فروری 2024 کو ہی ہوگا۔ کم از کم اس وجہ سے سینٹ میں جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس کے منظور ہو جانے سے الیکشن کے پروسیس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر الیکشن ڈیلے ہونا ہوا تو اس کی کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن صرف سینٹ کے اندر قرارداد منظور ہو جانے سے
कुछ भी इलेक्शन के प्रोसेस पे असरअंदाज नहीं होगा। समझता हूं कि इलेक्शन डिले करने के लिए एक तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चले वक्त गुजरने के साथ साथ ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि आया कि इलेक्शन 8 फरवरी को होते हैं कि नहीं होते। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से खबर थी और मज़हर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब के हवाले से जो इंपॉर्टेंट बातें उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी बेंच ने बल्ले के ऊपर समात की, यानी कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अपील दायर कर रखी है, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस मुशर्रत हलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं, उन्होंने आज सारा दिन इस केस की समात की। इसमें चीफ जस्टिस ने समात मुलतवी करते हुए कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करार पाए तो बल्ला का निशान समेत सब कुछ मिल जाएगा। आपने हमारा वीकेंड खराब कर दिया। जिस तरह के मैंने सबसे पहले भी ये बात कही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के पास इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि आया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त हुए थे या नहीं हुए। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ये बात साबित करने में कामयाब हो गए तो बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा, लेकिन अगर वो ये साबित करने में कामयाब ना हुए तो फिर बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा और तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों को आजादाना हसीयत से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अगर आज के दिन की सारी की सूरत हाल को देख के तो ऐसे लग रहा था कि जैसे जस्टिस काजी फायद ईसा साहब हैवी नजर आ रहे थे, मतलब कि वो जिस तरह से वो आर्गुमेंट्स कर रहे थे, सवालात कर रहे थे और पीटीआई के वकला उस पर कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि जस्टिस साहब आज हैवी नजर आ रहे थे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे वो थोड़े से डिप्रेस नजर आ रहे थे, बल्कि ऐसे लग रहा था जैसे उनकी प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं है। मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हुआ हूं कि अक्सर मैं महसूस करता हूं कि अदालतों के अंदर तहरीक इंसाफ के वकला की प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं होती। उनसे जब कोई सवाल पूछा जाए तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रॉपर तरीके से उसका जवाब भी नहीं दे पाते। जिस तरह से आज बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहां पे हुए, तो उसको वो प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे थे। आपने किस तरीके से अपने वोटर्स को कम्युनिकेट किया और किस तरह से आपने उनको इकट्ठा किया, उस हवाले से भी वकला कंफ्यूज थे, उसका प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दे रहे थे। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि वकला के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने केस की अच्छे तरीके से तैयारी करके जाया करें ताकि जस्टिस साहबान जो भी उनसे क्वेश्चन पूछे उसका प्रॉपर तरीके से जवाब दे सकें। लेकिन जिस तरह के मैंने कहा, मैं समझता हूं कि आज के दिन के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला अपने केस को सही तरीके से साबित नहीं कर सके। अगर जो सूरत हाल आज रही वैसी ही सूरत अगर कल रही तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए। आज के दिन के अगर रिमार्क्स को देखें तो उससे यही लगता है तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं रहेगा। जिस तरह के मैं पहले भी काफी दफा इस बात के ऊपर डिस्कशन कर चुका हुआ हूं कि जो बात सुनी जा रही है और जो बात डिस्कस की जा रही है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात में इजाफा किया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी। लेकिन बहरहाल अगर आइन, कानून और इंसाफ को देखें तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान रहना चाहिए और जो उनका बुनियादी निशान है उसी के ऊपर रहते हुए उनको इलेक्शन लड़ने का मौका देना चाहिए। देखते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल क्या करती है। चीफ जस्टिस ने पीटीआई वकला से इस्तफसार किया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहां हुए थे, क्या किसी होटल में मुनक्कद किए गए थे या घर में या किसी दफ्तर में? क्या पीटीआई के पास कोई ऐसा नोटिफिकेशन मौजूद है जिससे जाहिर होता हो कि पार्टी इलेक्शन किस जगह होंगे? इस पर वकील ने बताया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात चमकनी गांव के एक ग्राउंड पे हुए थे। जस्टिस मसरत हलाली ने इस्तफसार किया कि पार्टी इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा के छोटे से गुमनाम गांव का इंतखाब क्यों किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिकॉर्ड पर कुछ नहीं है कि पेशावर में किस जगह पार्टी इलेक्शन हुए। उन्होंने इस्तफसार किया कि पार्टी अरकान को कैसे इल्म हुआ कि वोट डालने कहां जाना है। इस पर न्याजुल न्याजी ने जवाब दिया कि अरकान को बदिया व्हाट्सएप मुकाम के बारे में बताया गया था और लोग पहुंचे हैं। इसकी एक वीडियो भी मौजूद है, अगर अदालत इजाजत दी तो उसे कमरा अदालत में दिखाया जा सकता है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वीडियो बाहर जाकर चला ले, दस्तावेजात पर केस चलाते हैं। अदालत ने न्याजुल न्याजी को दलाइल से रोकते हुए कहा कि वो इस केस में वकील नहीं फ्रीक हैं, मजीद बात करना चाहते हैं तो पीटीआई के सीनियर वकील अहमद खान से इजाजत लें। चीफ जस्टिस ने पीटीआई वकला से इस्तफसार किया कि गुज़िश्ता माह 2 दिसंबर से कबल पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कब हुए थे, जिस पर बताया गया कि गुज़िश्ता इंतखाबात 8 जून 2022 को हुए थे, जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने कल अदम करार दे दिया। अदालत की जानब से इस्तफसार किया गया कि क्या इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात कल अदम करार देने का हुक्म चैलेंज किया गया था। इस पर वकील मखतूम अली खान ने बताया कि फैसला पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जो लाहौर बेंच को रेफर किया गया, लेकिन फैसला नहीं हो सका। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब एक फैसला लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा था तो पेशावर हाई कोर्ट ने कैसे केस को सुना। इस पर मौजूदा पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का कहना था कि पार्टी इंतखाबात की हद तक लाहौर हाई कोर्ट वाला केस गैर मौसर हो चुका।
नए पार्टी इंतखाबात पेशावर में हुए थे, इसलिए पिटीशन भी वहीं दायर की गई। पर आज के दिन की इस तरह की सूरत रही कि सबसे ज्यादा जो पूछा गया क्वेश्चन वो यही था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कब हुए, कैसे हुए, कहाँ हुए, किस तरह कम्युनिकेट किया गया, किस तरह अपने वोटर्स को बताया गया। तो बहरहाल जवाब इसमें बार बार यही आया कि हमने इसकी हमारे पास वीडियो मौजूद है, हमने व्हाट्सएप के जरिए कम्युनिकेट किया, पर इसके हवाले से पीटीआई वकला के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं था जिससे ये बात साबित होती। बहरहाल इस केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अब कल 10 बजे इस केस की दोबारा समाअत होगी, फिर देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के फौरी बाद जस्टिस इजाजुल एहसन ने भी अपना इस्तीफा सदर मुमलकत को पहुंचा दिया। आखिर क्या जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब के साथ सॉलिडरिटी की या कोई और वजह भी हो सकती थी? देखें, इसमें सबसे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होता क्या है जो कि जजेस के खिलाफ कार्रवाई करता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 5 अफराद पर मुश्तमिल यानी 5 जस्टिस साहबान पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, 2 मोस्ट सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के और 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस दीगर तमाम हाई कोर्ट्स के होते हैं। ये 5 मोस्ट सीनियर जस्टिस साहबान पर मुश्तमिल काउंसिल होता है जो कि जजेस के खिलाफ, चाहे जज हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का, उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई ये कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेज सकते हैं। इनके पास ये इख्तियार होता है कि अगर किसी भी जज के खिलाफ कोई ऐसी एलिगेशन आए कि वो फिजिकली मेंटली अपने काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहा है या वो किसी किस्म के मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ है, तो वो खुद भी इंक्वायरी इनिशिएट कर सकते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे भी इंक्वायरी इनिशिएट कर सकते हैं। अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कर लेने के बाद ये प्रॉपर रिपोर्ट अगर वो समझे कि वाकई जिस जस्टिस के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है वो उसमें गिल्टी है, तो उसकी रिपोर्ट वो सदर पाकिस्तान को भेजते हैं। फिर सदर पाकिस्तान उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए उस जज को मजूल कर देते हैं। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मुख्तसर मैंने आपको एक फोरम, एक प्रोसेस बता दिया है कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहबान के खिलाफ अगर कोई मिसकंडक्ट का मामला हो तो उसको ये इनिशिएट करते हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने अपना इस्तीफा सदर मुमलकत को पहुंचा दिया, उसका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। जिस तरह से सैयद मज़हर अली अकबर नकवी साहब ने ये मौक़िफ़ लिया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज ड्यूटी सर अंजाम देना मेरे लिए एजाज की बात थी, बिल्कुल इसी तरह जस्टिस इजाजुल एहसन ने भी ये कहा कि मेरे लिए ये बड़ी एजाज की बात थी कि मैं बतौर जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता रहा हूं और अब मैं मजीद अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकता, लिहाजा मैं अपने ओहदे से रिजाइन करता हूं। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट कानूनी नुक्ता यह है कि अगर किसी जस्टिस के खिलाफ अभी इंक्वायरी शुरू ना हुई हो और इंक्वायरी शुरू हो जाने से पहले अपने ओहदे से रिजाइन कर दे तो उसको कोई नुकसान नहीं होता। मतलब कि वो जितनी भी उसकी मरात बनती हैं वो उससे वापस नहीं ली जाती। जो कुछ भी पेंशन वगैरह के मामला या अदरवाइज जो भी मामला हैं वो सब के सब उसको बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। ये मतलब रिजाइन करने से ना तो उसकी साख मुतासर होती है और ना उसे मरात वापस ली जाती है। लेकिन अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसके ऊपर इंक्वायरी इनिशिएट कर दे, शोकाज नोटिस जारी कर दे और मीनवाइल कोई जस्टिस से अपने ओहदे से रिजाइन कर दे, जिसका मतलब आमतौर पे ये समझा जाता है कि अब इस जस्टिस साहब को चूंकि पता चल चुका है कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो चुकी है और इसमें मैं गुनाहगार हूं और मुझे इसमें सजा का सामना करना पड़ सकता है, मुझे मजूल होना पड़ सकता है, तो उसमें वो रिजाइन कर देता है। पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हुआ है कि जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट की गई, उनको शोकाज नोटिस जारी किया गया और इस पेंडेंसी के दौरान उन्होंने अपने ओहदे से रिजाइन किया, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फादी ईसा साहब ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता कि कोई भी शख्स सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासर करके चला जाए। हम इस केस की कार्रवाई को जारी रखेंगे और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अब देखिए इसमें जस्टिस काजी फादी ईसा साहब क्या करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने भी अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया। इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने मज़हर अली अकबर नकवी साहब के साथ सॉलिडरिटी की है। दरअसल उनके खिलाफ भी मुख्तलिफ किस्म की एलिगेशंस थी और अमकान था कि उनके खिलाफ भी कोई रेफरेंस आएगा और उनके खिलाफ भी इंक्वायरी इनिशिएट होगी, तो उन्होंने अपने खिलाफ उस रेफरेंस से बचने के लिए और उस इंक्वायरी से बचने के लिए और जो भी बेनिफिट्स थे उन को महफूज करने के लिए और अपनी इज्जत को महफूज करने के लिए उन्होंने उस वक्त से पहले कि उनके खिलाफ कोई रेफरेंस आता उन्होंने अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया। क्योंकि उनके पास ये एग्जांपल मौजूद है जिस तरह के जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब ने रिजाइन दे दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी इंक्वायरी बंद नहीं हुई, तो उन्होंने भी यही सोचा कि अगर मैंने इस मौके पे रिजाइन ना किया, मेरे खिलाफ रेफरेंस आ गया, मेरे खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट हो गई, उस दौरान अगर मैंने रिजाइन किया तो फिर मेरी बचत नहीं हो सकेगी। लिहाजा उन्होंने अपने लिए यही बेहतर और मुनासिब समझा कि रेफरेंस आने से पहले, इंक्वायरी शुरू हो जाने से पहले मैं अपने ओहदे से रिजाइन कर दूं ताकि मेरी इज्जत भी बची रहेगी, मेरे बेनिफिट्स भी महफूज रहेंगे और मेरे खिलाफ किसी किस्म का कोई इल्जाम भी नहीं लगेगा। जिस वजह से जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने भी अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।